अच्छा सर, कैन वी सी द स्क्रीन काइंडली? अगर आप देखें अबाउट स्पीकर्स का मैंने एक स्लाइड शेयर की है यहाँ पे, इफ वी कुड। जी जी, it's visible. अच्छा, थोड़ा सा ना आज को इंटरनेट मेरा इशू कर रहा है, so if I get disconnected to kindly please continue. I don't know, I am being disconnected again and again, so Absolutely, no worries, चले कोई मसला चले नहीं. चले, please continue. Thank you. ठीक है. अच्छा, so I was answering, I think Nissa या Maria का एक question. Maria, if you can copy paste that again because I've lost my train of thought. अभी के लिए the first question we have is from Musa, and it says कि on various form Fulbright scholars and alumni have pointed out the key features of PO and SO. However, there was no cohesion as well, as all were totally different. What to do in such a situation? Musa, the thing is that the reason that's happening is because every successful candidate ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एक set pattern follow किया हो, and probably that's exactly why a lot of alumni tell you कि जो है कभी भी आप किसी और का essay जो है उनसे मत मांग के पढ़ें, उसके बाद ना लिखना शुरू करें essay. Reason being कि if you look at a successful candidate's essay, तो आपको लगता है कि you know बस यही this is the answer to all my problems, और बस यही essay है, इसी तरह का मैंने लिखना है और मुझे Fulbright मिल जाएगा. ऐसे don't do that. Reason being कि everybody has their own story and everybody has something unique that they can share which can help them secure this scholarship. इसी वजह से cohesion सब essays में नहीं होती क्योंकि हर किसी को उसकी uniqueness की वजह से ही select किया गया है. And when you are writing your essay, make sure you capitalize on your unique abilities, experiences and exposure. So I mean that's the answer I'll have कि शायद ये आपको वो जो है आपको लग रहा हो कि coherent नहीं है the format or the do's and don'ts that different alumni are sharing. Most alumni जो वो tips वगैरह दे रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं based on their own experience. इसीलिए whenever I answer a question जो कि मुझे लग रहा होता है is relevant to me, I usually always give a disclaimer कि this is based on my experience and other people have might have had different experiences. So I hope that answers your question. Second question is for the CV, FB alumna advised to list down the achievements at workplace rather than mentioning traditional job description. Is it so? Musa, I think that's absolutely how you should be formatting your CV. Action-oriented bullets जो हैं वो kind of help your resume stand out from the rest of the candidates. So, for example, you can say I implemented this project and this resulted in, for example, a 40% cost reduction. So that's an action oriented bullet. So that will always be better than you just saying I was in a project manager role and I led a team of 6 people and we implemented different projects. So that's a very vague वो. It's always better कि आप job description की जगह action oriented bullets में अपनी CV लिखें. अच्छा, इस Next, जी sorry जी Naveen. आप थर्ड का भी रिप्लाई कर लें, फिर I'll also share my some of my बिल्कुल बिल्कुल sir. So the next question is, do you recommend getting PS and SO reviewed by multiple FB scholars and alumni and knowing that they belong to a different field altogether? Musa, there's no right answer to this question. अगर आप ज़्यादा लोगों से कराएंगे रिव्यू तो the thing that might happen is कि you'll have a lot of different perspectives. It could be helpful for you in terms of knowing के क्या lack करे आपके essay में और सारा कुछ, but it might also mean like it could give rise to a lot of confusion in terms of के क्या लिखना है क्या नहीं. This is actually the same question as your first question कि अगर आप multiple लोगों से कराएंगे तो उनके different experiences और हर कोई आपको अपने experience के मुताबिक जो है review करके feedback दे रहा होगा. I think it's always nice to not talk to a lot of people, but again, आप अपनी फील्ड से रेलेवेंट अगर हैं तो आप उनको प्रायोरिटी दें और बाकियों से आप पूछें ज़रूर, बट मेक श्योर कि आपको कंफ्यूज ना करें उनका फीडबैक एंड यू आरंट रियली आपकी जो यूनिकनेस और वो है ना वो किल ना हो रही हो. एज लॉन्ग एज दैट्स नॉट हैपनिंग, इट डजंट मैटर कि आप एक बंदे से रिव्यू करा रहे हैं या 10 से करा रहे हैं. Sorry Naveed, go ahead. No. Thank you so much for explaining in this detailed manner. मैं थोड़ा सा इससे taking liberty from Musa's query because I have been reviewing essays and CVs
since a month, और कुछ Fulbright ने भी काफ़ी extend करते रहे deadline, तो that has increased my workload. I think same is the case as yours. So अभी 22 जब हुआ है तो एक वीक का वर्कलोड हमारा और बढ़ गया है हैप्पीली. So we are really happy to help our future aspirants and juniors. Issue ये है मूसा कि there are in personal statement or study objective there are certain key features, ठीक है. अब वो की फीचर्स जो हैं वो हर एक के अंदर भी वेरी कर सकते हैं. इफ़ अ पर्सन इज फ्रॉम रूरल एरिया और उसकी स्ट्रगल एक और तरह की है, अर्बन एरिया से स्ट्रगल कुछ और तरह की है. सो इट रियली डिपेंड्स कि वो किस तरह से इवॉल्व हुई आपकी स्ट्रगल. बट जो मेन कोर कंपोनेंट है, अगर आप वो हमारी वो वीडियो सुने तो मेन कोर कंपोनेंट्स जो है वो दे रिमेन सेम, कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने पहले क्या किया, आपकी मोटिवेशन क्या है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या करेंगे यूएस जाके, व्हाई फुलब्राइट इज सूटेबल टू योर एस्पिरेशंस एंड व्हाई यू आर सूटेबल फॉर फुलब्राइट, ठीक है, और व्हाई यूएस से और वापस आके आपके गोल्स क्या हैं. सो दैट्स क्वाइट अ, और इस तरह से आप कम्युनिटी को अपलिफ्ट कैसे करना चाह रहे हैं थ्रू योर this degree or something like that. So that quite sums up, I think, your personal statement. Similarly, for study objectives, main and key component for me is के आपकी problem identification, what you want to pursue, where it was identified, और फिर down the road आपके क्या experiences रहे, उससे लिए आपने क्या किया academically, professionally, or what you want to study, or why USA, or why Fulbright is important for what you want to study, and what is the impact that you are planning on making when you come back at Pakistan. क्या आप सोसाइटी को आप उससे अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं. आई थिंक दीज आर द की कंपोनेंट्स. आप इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे आपकी चीज़ें, बट द स्ट्रगल और जिस तरह से सारा सेट की वो आपकी अपनी होएगी, यूनिकनेस आपकी अपनी है. और किसी को भी अगर आप उस तरह से कॉपी करेंगे, उसकी पर्सनल स्टोरी को कॉपी करेंगे, तो दैट वॉन्ट गिव यू that much an advantage quite fairly. Secondly, for CV, I think Sarah has already explained a lot about it, और मैंने भी पीछे बताया पिछले टॉक के अंदर, अभी जो पिछली हमारी मीटिंग थी, कि सीवी के अंदर आप अपनी जो स्टडी ऑब्जेक्टिव और पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपने जो अचीवमेंट्स किए हैं या रोल्स रहे हैं, सिर्फ इन्हीं को लिखें. क्योंकि अगर आप सिर्फ मेंशन करेंगे कि मैंने यहाँ से ये काम किया है और आई वाज एम्प्लॉय ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉर दिस ईयर या दिस पीरियड, वो तो आपकी एप्लीकेशन में पहले ही आ गया. सीवी के अंदर आपने अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव और पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो आपने कंट्रीब्यूशन की हैं, आई थिंक दैट, और या जो आपके रोल्स रहे हैं और उस रोल के अंदर जो आपने चीज़ें की हैं आपने, दैट शुड बी देयर. थर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये इसमें होता यह है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा आपके पास रदर से एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस हो गया, आपने कोई 3-4 एप्लीकेशंस बनाई हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की, या आप 1 साल 1.5 साल से करते आ रहे हैं, तो फिर यू गेट टू नो व्हाट पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ स्टडी ऑब्जेक्टिव इज. फिर इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप 5 से 7 लोगों को भी रिव्यू करवा सकते हैं, बिकॉज यू नो कि व्हाट इज द सेंस ऑफ दीज एसेज आर. और अगर अगला बंदा कोई एक फीडबैक दे रहा है तो कौन सी चीज़ उसमें फॉलो करने वाली है और कौन सी नहीं है. But when you don't have this sort of critical analytical analysis or critical analysis capabilities developed after certain sort of experience, तो it's not a good idea कि आप बाकी सारे लोगों से पूछें, because एक से आप जो पूछेंगे उसका व्यू पॉइंट और होएगा, दूसरे अपनी तरह से कहेगा कि आप इसको, they both would be correct in their own perspective, but जब वो दोनों perspectives mix करेंगे तो you won't be able to write a good one. सो इट्स जस्ट लाइक कि एक या मैक्सिमम 2 लोगों से आप स्टार्ट करें, और जो वो कह रहे हैं आप उनको इम्प्रूव करें, वापस शेयर करें. और इट्स ऑलवेज इज अ गुड थिंग कि मैं जिनके साथ मैं कर रहा होता हूँ, आई ऑलवेज से कि 3 से 4 ड्राफ्ट जो हैं एटलीस्ट वो रिव्यू होने चाहिए. तो अगर आपको लग रहा है जैसे हम अभी हैं, हमें लग रहा है कि वी कुड सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई कि कौन सा फीडबैक ठीक सा है या कौन सा फीडबैक हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है नहीं है. सो एट आवर स्टेज मे बी वी कुड अफोर्ड getting it reviewed by 5, 6, 7 people, but at your stage I would recommend कि try to stick with couple of people by max. जी miss, thank you. Thank you, Naveed. Next question is Farina, and it's about transcripts. Farina, according to the recent announcement USC FP ki thi, you need to have your final transcript to be eligible to apply. And like you said, the only way around it to actually is to actually just email USC FP and ask them. क्योंकि अगेन उनकी ये रिक्वायरमेंट और उन्होंने अभी ये रिसेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एक
कंस्ट्रेंट लगा दिया उस पे. Unfortunately, you need to have your final transcript before the deadline to be able to be eligible. Next question is Ali Akram, and it's for Mr. Naveed. So Naveed, I'm just going to ask you to take it. Thank you. अच्छा, ये है traditional PhD program is for 3 years, but in some cases I've seen program up to 5 years. How? देखिए 5 years भी लिमिट नहीं है इसकी. आई थिंक आइडियली आपका जो पीएचडी का प्रोग्राम है यूएस के अंदर इट टेक्स लाइक रफली 4 years और 4 to 5 years. और इसके अंदर ये है कि फॉर यूएस बेसिकली उसके अंदर आपका 1.5 साल का पहला कोर्स वर्क होता है आपका. सो उसके बाद आपकी रिसर्च स्टार्ट होती है. बट एट यूरोप आपके पास या साउथ कोरिया या ऑस्ट्रेलिया आप डायरेक्ट जो है आपका रिसर्च स्टार्ट होती है और आप जो है वो एज ए रिसर्च स्टूडेंट रोल होते हैं और आप 2.5 से 3 साल में you complete your research project, you publish the required number of papers to become eligible to sort of apply for your thesis defense, and you basically defend your PhD and you are done with your PhD. But at US से थोड़ा सा मॉडल डिफरेंट है. इसके अंदर 1.5 साल का आपका रफली लग जाते हैं कोर्स को कंप्लीट होने में. देन यू गिव कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम और उसके बाद फिर आपकी रिसर्च स्टार्ट होती है. तो इसके यहाँ पे 4 से 5 साल लग जाते हैं यूएस में आराम से. बट देन अगेन आपके गोल्स क्या हैं और दैट कोर्स वर्क इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट इन योर करियर बिल्डिंग आई थिंक. और इसी तरह से इट डिपेंड्स अपॉन योर एस्पिरेशंस. आई डोंट से कि आप यूएस में 3 साल में कर नहीं सकते. कुछ लोग शायद कर भी सकते हो 3 साढ़े 3 साल में. बट दैट रियली डिपेंड्स ऑन एडवाइजर, आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी. बट frankly speaking, in realistic terms, 4 years is a minimum at US. Thank you, Naveed. Next question is Amna ka, where should we attach certificates of internships experience in the application? Amna, they aren't mandatory to attach. So even if you don't attach those certificates, it's completely okay. I Next think question is but others documents के अंदर एक मेरे ख्याल से ऑप्शन होता है. उसमें मैंने ये किया था कि मैंने उसमें सारे अपने सर्टिफिकेट्स को पीडीएफ जॉइंटर और पीडीएफ मर्जर के अंदर मर्ज करके एक फाइल बना के उसको सिंगल फाइल में अपलोड कर दिया. या मतलब इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. इफ यू वांट टू तो आप अदर डॉक्यूमेंट वाले टैब में अपलोड कर सकते हैं, बट मैंडेटरी आई थिंक वो नहीं होता. Next question is Dr. Fatma ka, and she says GRE score is mandatory. Is there any revised criteria in terms of GRE? Fatma, there has been a recent announcement from USCFP that GRE is not mandatory to apply for Fulbright. Only shortlisted candidates unke liye mandatory hoga at a later stage to take the GRE exam. So yeah. Next, if I can ask a question on mic. Gigi, go ahead. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum Ms. Sara. My question is that you are going to you have been selected for master's program and you have no any kind of publication as well. So what kind of community work and what kind of fellowships or internships you have done that were contributing towards your selection? Thank you. Abdullah, sorry. Just like a quick वो मुझे आपका बस first sentence समझ नहीं आया कि I've applied for a master's and I don't have experience. Is that what you said? मुझे समझ नहीं आई. Sorry. I want to say that you have been selected without any kind of publication and research work, and you have work experience. And what kind of community work and internships and fellowships you have done? ठीक है. ओके, एब्सोल्युटली. अच्छा, सो मेरी जितनी भी एसओपी और वो सारी थी ना, वो फोकस थी बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स की एप्लीकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स, एंड माय लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वर टू गो टुवर्ड्स एकेडमिक्स. So as far as community work is concerned, I talked about the fact that education is something that has always been close to my heart and I have done that a couple of times. सेकेंड जो बात है आपकी फेलोशिप्स वगैरह मैंने कोई नहीं की, लेकिन मैंने टीएशिप्स की हुई थी रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में. तो आई मेंशन्ड दैट माय वर्क एक्सपीरियंस वाज आल्सो रेलेवेंट टू माय फील्ड, सो आई टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल. पब्लिकेशन अगेन मेरी कोई नहीं थी. आई स्टार्टेड ऑफ विद द फैक्ट आई टुक अ फाउंडेशनल कोर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड व्हेन आई टुक दैट कोर्स तो आई रियलाइज कि उसमें डेटा ओरिएंटेड कोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में. एंड so yeah, I took it from there. I talked about that foundational course. Then I talked about the TA-ship that I did in that very course the next year. I talked about a few internships. उनमें से एक internship थी जो relevant थी इससे सबसे ज़्यादा, तो मैंने उसके बारे में बात की थी. और उसके बाद I just talked about my work experience, which was also in the relevant field.
So I hope that kind of answers your question. Next question है, wait, Tehreem ka, is it important to have professional recommendation letter or all the recommendation letter can be academic? Tehreem, if you have work experience, especially अगर work experience relevant है to the degree that you are applying for, तो please make sure कि एक आपका जो letter है वो professional हो, क्योंकि professional जो letters होते हैं, of course they are, I mean I won't say that academic letters are any less important, but if somebody has work experience, so it's always better to have at least one professional recommendation. Next, what do you recommend uploading in the additional document section? Amna, I think Naveed ने अभी वो पहले clarify किया था कि he kind of compiled all the certificates etc. जो कि उनके official थे into one PDF file and uploaded that. So I think you can probably use that section to that advantage. वर्क एक्सपीरियंस भी जी, उसके साथ जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके अलावा एक हो सकता है वर्क एक्सपीरियंस का आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का बना दें, जितने आपके वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, लाइक आपके इंटर्नशिप के लेटर्स हैं, आपके व्हाटसएवर, और आप प्रोफेशनली इफ यू आर वर्किंग तो यू प्रोफेशनल आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं. सेकेंडली, एक और टैब आपका डॉक्यूमेंट मर्ज करके बना सकती हैं इफ यू हैव डन सम ऑनलाइन कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट, तो वो आप कर सकती हैं. या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक अलग से जो आपके सर्टिफिकेट्स एंड एज अ प्रूफ योर इन्वॉल्वमेंट इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर, और आपने कोई इंटर्नशिप सॉरी कोई सेमिनार और कंडक्ट करवाएं, ये सारी चीज़ें उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको एक अलग से बना के, तो मैंने इस तरह से कोई 3-4 डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे बनाए थे, तो आई थिंक हेल्दी कोई 60-70 सर्टिफिकेट्स मैंने अटैच कर दिए थे साथ एप्लीकेशन के. Yeah. Next question is Nisa ka, ki you started answering my MBA question and the meeting was lost. I'm so sorry about that, Nisa. I was actually saying कि अगर आप engineering, software engineering से MBA पे shift कर रही हैं, तो just make sure कि you have valid arguments to back up this shift. A और B, MBA में एक मसला जो आता है ना, जब आप Fulbright के लिए apply कर रहे होते हैं, तो आपका बहुत strong argument होना चाहिए कि how are you planning to apply everything that you learned in an MBA when you come back to Pakistan. And what is it that you will get in the United States जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के MBA डिग्रीज में नहीं है, क्योंकि रिसर्च और साइंसेज और इस तरह की जो डिग्रीज होती हैं ना, इट्स ईजियर फॉर देम टू बैक अप देयर क्लेम बेस्ड ऑन द फैक्ट कि यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. तो मेक श्योर कि MBA के लिए जो व्हाटएवर arguments you're building up, they are super strong. Next question is, can we mention the research work thesis which we have conducted in MPhil, because still I don't have any publication. Naveed, can you take this question? I think because this is PhD relevant probably. Sure. अच्छा, इसके अंदर जो है आप डेफिनेटली आई विल इनकरेज कि आप लिखें, और पब्लिकेशन ना होना इज नॉट लाइक, आपने जो स्किल्स अर्न की हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन की है, और सिमिलरली जो आपने थीसिस के अंदर काम किया है, उसको अपने जो है स्पेशली जो आपकी स्टडी ऑब्जेक्टिव वाला ऐसे है उसमें भी लिखें. और इफ़ यू हैव सम पब्लिकेशन दैट यू हैव यू आर वर्किंग एट और इट्स अंडर रिव्यू, तो आप उसको अपनी CV में लिख सकती हैं ऑलवेज कि इस जर्नल में हमने जमा करवाई, इट्स अंडर रिव्यू. और इसके अलावा कौन सी स्किल्स आपने अर्न करी, और वो एक इम्पोर्टेंट एक ब्रिजिंग, एक सॉर्ट ऑफ स्टेपिंग स्टोन और ब्रिज है आपका, सॉर्ट ऑफ आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं और फ्यूचर जो आपके एस्पिरेशंस हैं. सो आई वुड डेफिनेटली इनकरेज कि आप उसको लिखें, और ज़्यादा उसको ज़्यादा मेंशन करें आपके जो PhD के स्टडी ऑब्जेक्टिव में वो भी MPhil के रिसर्च से रिलेटेड है. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन सहरिश का है. शी वांट्स टू नो कि अगर एकेडमिक रेफरेंस इज मैंडेटरी. सो सहरिश, द क्विक आंसर टू दैट, अगर आपकी इररेलेवेंट मतलब अंडरग्रेड जो डिग्री है, इट्स नॉट अलाइनिंग विद योर फ्यूचर गोल्स, what you can do is कि अगर आपने अपने एकेडमिक करियर में so for example you can ask your FYP supervisor जो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर थे, आप उनसे बात कर लें कि वो आपके लिए एक एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट लिख लें. अगर आपने कोई टीएशिप की है तो टीएशिप और वो कोर्स आपने ऑब्वियसली जिन इंस्ट्रक्टर से लिया होगा, he can probably write a professional/academic recommendation for you. So it will be nice if you can go use that path, because again it's nice कि आपके पास प्रोफेशनल एकेडमिक दोनों रेफरेंसेस हों. If not, sorry, go ahead, Naveed. No, please continue.
फिर उसके बाद I was saying if that's not possible, only then आप जो है मतलब entirely professionals पे करें, but try to make sure कि आप किसी तरह अपने कोई एक academic चाहे वो आपके advisor हो, could be a teacher that you worked with या कोई project जो आपने बहुत अच्छा किया हो, तो in terms of that, so what that person can do is कि वो आपके skills और उनके बारे में reference में बात कर सकते हैं, and if you are in contact with that teacher, तो आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि मतलब मेरे ये future aspirations हैं, especially if that's something जो आपने उनके साथ पहले discuss किया था while you were enrolled in an undergrad degree, so they can talk about that. Because like this is what I did. मेरी एक जो academic I'd say reference letter था वो मेरे FYP supervisor का था, or it wasn't relevant to the degree that I intended to take in my masters, but the reference letter talked about the fact कि I am very interested in this, और मेरा जो research project था वो कितना thorough था, और मतलब उसके skills के ऊपर फिर वो elaborated था सारा letter. I think ये बहुत ज़रूरी है, even if they haven't mentioned is that mandatory, but again it's our own opinions, it could vary, like it's our opinion, जो हम share कर रहे हैं वो अपना जितनी हमारी observation है उसके accordingly कर रहे हैं, it's a small disclaimer again, but जो है if I am reviewing applications or if I were to award some grant, तो मुझे ये अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई एक भी एकेडमिक लेटर आपका नहीं आया तो that could sort of raise some alarm as well कि why, ठीक है ना. So I think आपका अगर एकेडमिक एक एटलीस्ट एकेडमिक लेटर आपका जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है उनसे एक लेटर they have to refer at least one for me. अगर एक भी नहीं आता तो that is something कि maybe आपने अच्छे टर्म्स पे ख़त्म की है, यूनिवर्सिटी नहीं की. This could also raise such questions as well. That could be wrong, I could be wrong, but then again it's my opinion. It's just an opinion. Naveed, next question is again PhD relevant. If somebody has 5 publications, would that be enough? I think that is again it will be looked कि वो publications क्या हैं, वो publication किस journal में है, वो publication में आपका क्या role है, वो publication आपके study objectives से कितनी relevant है, उसके अलावा आप फर्स्ट ऑथर हैं उसमें किसी एक में या नहीं है या को ऑथर हैं, और उसके अलावा उस पब्लिकेशंस की साइटेशंस क्या हैं. सो आई थिंक इट्स मोर लाइक टू डू विद द क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस, योर पोजीशन इन ऑथर लिस्ट ऑफ दैट पब्लिकेशन, एंड और उसके अलावा आपकी व्हाट इज द अलाइनमेंट आपकी उन पब्लिकेशन के साथ क्या है, और वो पांचों पब्लिकेशंस आपस में कितनी अलाइंड है. लाइक एक एक्स एरिया पे हो, एक वाई पे हो, एक ए पे हो, एक बी पे हो, ये तो नहीं है. और अगर ऐसा नहीं है और आपकी एक ही एरिया के अंदर हैं जो आप आगे जाना चाह रहे हैं उसके अंदर हैं, अच्छे जर्नल्स में हैं, और सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हैंडी. बट अगर 5 पब्लिकेशन इस तरह से हैं और एक पब्लिकेशन किसी की ऐसी है जिसके अंदर उसने रेलिवेंट किया, अच्छे जर्नल में किया, आई थिंक दैट वन पब्लिकेशन मे गेट एन एच ओवर 5. बट अगर आपकी 5 पब्लिकेशन है और बहुत अच्छी हैं तो आप फिर बाकी काफ़ी सारे एप्लीकेंट से आगे चले जाएंगे. सो दैट इज़ समथिंग जो पता चलना चाहिए हमें. आई कुड बेटर कमेंट, इसलिए मैंने ओपनली बात की है. इफ़ मेरे पब्लिकेशन सामने हो तो फिर मैं ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर सकता हूँ, बट दिस इज़ माय कमेंट ऑन दिस के पब्लिकेशन का नंबर से ज़्यादा पब्लिकेशन की बाकी चीज़ें ज़रूर मैटर करेंगी इन ऑर्डर टू डिसाइड के इट बी इनफ और नॉट. Next question is, I've attended a session on SPSS and research writing. Should I mention it in my personal statement as it is not matching with my study objectives? I would not recommend talking about these things in your personal statement या study objective anyway, because ये ऐसी चीजें जो आप अपने resume में या skills वगैरह में लिख सकते हैं, और अगर तो वो irrelevant है तो फिर I don't think you should be covering them at all in these essays specifically, because ये 700 to 750 words that are solely concerned with what you have done in the past and what you plan to do, or how is Fulbright the answer to aligning both of these together. So yeah, next question, Hira ka. Hira, I think I answered this already for you कि this is a query you might have to redirect to USCFP. आप उनको बता दें. ये इनका एक और कंपोनेंट था क्वेश्चन में. आई हैव रिटन माय एजुकेशन स्ट्रगल वर्क एक्सपीरियंस वॉलंटियर, और ये सारी चीजें मैंने 7 to 750 वर्ड्स में की हैं, but I could not write inspiration and motive for Fulbright. I don't know आप वर्ड लिमिट के आप कह रही हैं या आप कह रही हैं कि मैं लिख नहीं सकी.
बट if it's word limit तो it could always be doable. आपकी जो 751 आई थिंक हमने जैसे मेंशन किया था कि पहला ड्राफ्ट इवन आप 1500 वर्ड्स का लिखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन सी नहीं, और कौन सी चीज़ों को आप लाइक 10 वर्ड्स में आपने लिखा है वो आप 2 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आपने 3 लाइनों में लिखा है, आप बाद में दोबारा उस ड्राफ्ट में आएंगे तो यू कुड से यार इसको तो मैं 1 लाइन में लिख सकती थी। सो दैट इज Yeah, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कि आपकी मोटिवेशन फॉर फुल राइट क्या है, बिकॉज फुल राइट एक्चुअली फुल राइट आपको जो है वो इज अ फंडिंग और ग्रांटिंग एजेंसी, तो आपके फुल राइट वाई फुल राइट, और आप उसके लिए क्यों यू आर इंस्पायर्ड टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर फुल राइट फैमिली। सो आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनल absolutely स्टेटमेंट। जी सारा प्लीज कंटिन्यू। agreed. Hera, आपका जो क्वेश्चन है, like I said, I answered that I think in the last वो two page series वाला भी मैंने आंसर किया था कि unless absolutely necessary तो आप 2 पेजेस पे मत जाएं। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको लग रहा है मिस हो रही हैं, फिर आप 2 पेज पे जा सकते हैं, वरना इट्स बेटर कि आप 1 पेज में उसको कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निशा का, डू दे प्रेफर अ सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट 1 कॉलम रेज्यूमे और अ मॉडर्न 2 कॉलम सीवी? Nisa, I'm not sure if they have a preference as such. I mean, I've seen people जिन्होंने 2 column resumes use किए हैं, they've gotten selected. I personally used वो जो black and white एक normal format होता है, so I use that. I don't think इसमें कोई hard and fast rule है in terms of the आई थिंक preference. ये उनकी Uh, प्रेफरेंस से ज्यादा आपकी लिबर्टी, आपको कौन सा फॉर्मेट yeah, ज्यादा लिबर्टी दे रहा है। हमारे पास मैंने भी देख रहा था कुछ सीरीज, तो हम वो फॉर्मेट के अंदर आजकल बहुत ज्यादा लोग जा रहे होते हैं और एक 1 पेजर फॉर्मेट आया होता है उसी के अंदर, बट वो फॉर्मेट आपको लिबर्टी नहीं देता। आपकी बहुत सारी जो पेज की स्पेस है वो फॉर्मेट hmm, कंज्यूम कर जाता है। सो आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट जो फॉर्मेट है दैट गिव्स यू लिबर्टी टू आई थिंक क्राफ्ट योर सीवी in a better yeah, format. So yeah, I think yeah. simple black and white or 1 column वाला जो white वो जो है, I think that is preferable because वो आपको liberty ज़्यादा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर फातिमा का, recommendation letters required must be from medical university graduated. Fatma, I'm not sure if I get your question. If you wanna unmute yourself and ask this, तो would be nice. If you want के chat में इसको थोड़ा सा explain कर दो मुझे, तो I can answer that again when I get to it. क्योंकि मुझे exactly clear नहीं हुआ कि आप क्या exactly पूछना चाह रहे हैं. Next is Next another question है, important question. के assistant yeah, professor और professor. So for me, for my take, I think that अगर आपका assistant professor आपके लिए ज़्यादा उसके साथ interaction रहा है और आपके लिए ज़्यादा सारी चीज़ें, he can vouch for your skills and he has been observing your skill set. I think और courses आपने उनके साथ ज़्यादा लिए हैं, projects ज़्यादा किए हैं, तो उस केस के अंदर आपका assistant professor का जो letter है, for me वो प्रोफेसर से ज़्यादा important हो जाएगा। इट इज yeah, समथिंग दैट द रिकमेंडर आपके लिए लिख क्या रहा है, लिख कितना सकता है, और इसीलिए अगर आपका प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन रहा है और वो आपके लिए लिख सकता है, देन डेफिनेटली अगर कंटेंट सेम है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रोफेसर शुड बी गिवन मोर वेटेज। बट अगर कंटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आपका ज़्यादा है तो आई वुड हाईली इंकरेज कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ जाएं। मिस सारा, आप अगर आप इस पे थोड़ा सा। I would absolutely agree. It doesn't matter कि उस प्रोफेसर का रैंक क्या है. What matters is कि आपका उनके साथ ओवरलैप कितना था in terms of the, especially अगर डिग्री जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो relevant work experience. So one of my letters was actually from an adjunct faculty. तो वो ना प्रोफेसर थे ना असिस्टेंट प्रोफेसर थे, बट क्योंकि मैंने उनके लिए टीएशिप की हुई थी, so I asked him to write me a letter. So that I think rank जरूरी नहीं है. More so what's important is कि जो काम आपने उनके साथ किया हुआ है वो कितना रेलेवेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नवीद, ये आपके लिए पीएचडी के लिए. मैं क्योंकि वी आर रनिंग टूवर्ड्स सॉर्ट ऑफ एंड, तो थोड़ा ही टाइम रह गया, तो मैं क्विकली इसको जवाब दे देता हूँ। अली, इस तरह से है कि आप यूएस की पीएचडी के अंदर सबसे अच्छा ये कंपोनेंट ये है कि यू हैव द लिबर्टी कि आप 1 साल कोर्स वर्क लें और 1.5 और 1 ईयर, आई एम नॉट श्योर, बट 1 to 1.5 ईयर का कोर्स वर्क होता है, आप वो लें। और मीनवाइल योर कोर्स वर्क के अंदर आप सेलेक्ट करें कि आप कौन से सुपरवाइजर आपको किस फैकल्टी के साथ रिसर्च करनी है। सो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट aspect of your PhD at US. So yes, you have the complete freedom to choose supervisor once you are there, और आप उनके साथ interaction करके unless और ये मैं फुल राइट की बात कर रहा हूँ, 90% तो ये है
हाँ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है फुलब्राइट की जो फंडिंग की अरेंजमेंट इस तरह से हो गई है कि सुपरवाइजर ने उसको कर दिया है, तो देन आई डोंट नो, बट वो भी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे हैं, एक दो से ज़्यादा ऐसा नहीं होता। मोस्टली यही है कि आप कोर्स लेते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपने, जैसे मेरे साल के बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपने डिसाइड करना है आपका रिसर्च सुपरवाइजर क्या होगा। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यूएस की जो है ना डिग्री का। जी। Personal statement should be more Next. technical, like most of about your field or about personality. Extracurricular can be connecting to any chemical engineering because आप इस ये जो है आपका जो सेकंड पोर्शन है हीरा, अगर आप आई डोंट नो आपने जहाँ से ये पढ़ा है फुल ब्राइट एस्पिरेंट्स वाले में, अगर वहाँ से आप कमेंट कर दें या पोस्ट कर दें तो आई थिंक हम यू विल बी एबल टू कनेक्ट यू विद एनी केमिकल एनर्जी। Yeah. आई एम लाइक फर्स्ट पोर्शन जो है आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है, it shouldn't be more technical, but it should be more about personality, extracurricular achievement, but it should give a flavor of your subject that you want to study। और उसके लिए आपने पहले पढ़ा क्या है। अगेन इट कुड बी लाइक 40% आपकी या 40 to 50% आपका इसमें हो सकता है टेक्निकल एस्पेक्ट फ्लेवर हो सकता है, और 50% आपका पर्सनैलिटी आ जाएगा इसमें। और जो आपकी स्टडी ऑब्जेक्टिव उसमें 100% आपका जो है ना वो इट रिवॉल्व अराउंड योर टेक्निकल सब्जेक्ट और स्टडी ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू परस्यू। इसमें आप Yeah. कमेंट करना चाहें अगर सारा, तो अदरवाइज वी कुड। नहीं, absolutely, that I agree completely. Next question जो है तहरीम का है कि what to mention in the specific reason for selecting a university. तहरीम, you can actually just like be honest कि exactly आपने वो university क्यों choose किया है. It could either be कि उनका जो curriculum है वो आपको काफ़ी interesting लगा in terms of your study objectives. It could be one of the top ranked universities जो कि आपकी fields में है. उधर कोई ऐसा प्रोफेसर हो सकता है which you feel super inspired by. तो like just be honest in terms of the fact कि आप एक यूनिवर्सिटी को क्यों देख रहे हो या क्यों चूज कर रहे हो, तो that's completely fine. Next question is Nisa ka ke my experience is Nisa, I think I've already answered this. For future, I've planned going into women empowerment sector to somehow help them in being independent. On the other hand, I can just go with MS and CS with big data or something which doesn't align with my statement but aligns with my experience. Again, Nisa, इसमें the thing is कि मैंने आपको पहले भी मैं MBA वाला जब आंसर कर रही थी तो मैं यही कह रही थी कि as long as आप बैकअप कर सको अपना जो पॉइंट है, if you want to go ahead with the fact कि if you feel कि MBA जो है will equip you with the right skills to you know follow your passion, जो कि women empowerment में अगर किसी तरह भी you feel के help कर रहा है, तो for sure like you can mention that and that will be मतलब amazing. It's मतलब काइंड ऑफ नेसेसरी के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन कर रहे हो विद यू नो द डिग्री दैट यू आर प्लानिंग टू टेक. पास्ट एक्सपीरियंस शायद इतना रेलेवेंट नहीं है जितना आपकी फ्यूचर एस्पायरेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी आप कर रहे हैं. उसमें द ओनली थिंग द ओनली क्वेश्चन जो कि एक एप्लीकेशन रिव्यूअर के दिमाग में शायद आ सके वो ये होता है कि हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन दिस डिसीजन, कि मतलब आपको कहाँ से ख्याल आया कि आप अगर 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी थी तो हाउ कम लाइक ऑल ऑफ अ सडन यू डिसाइडेड कि मैंने MBA करना है. सो दैट्स द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर. अगर वो आप आंसर कर रही हैं और आप उसको पजल पूरी बना रही हैं कि मैं MBA करूंगी तो मैं पाकिस्तान वापस आके आई फील कि आई विल be in a better position to serve this society, especially in terms of women empowerment. तो मतलब I think with all due wo aap you can mention this and that would make perfect sense as long as the narrative makes sense. So having an MBA degree as your preferred degree is again Yes, absolutely your choice. absolutely. So next one is, since I would be pursuing PhD in environment, so I'll answer this. I'll take this. Environmental sustainability अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एक university, I think there could be some more universities, but again for now I think it's okay अगर आप environmental studies के अंदर उसको लिखते हैं. अभी के लिए like I was interested in studying air pollution, so उसमें मैंने environmental studies के अंदर ही उसको mention किया था. So it's yes, it sounds okay if you mention it in environmental studies. और हीरा का है जी के स्टेटमेंट रिव्यू, यू कुड रिक्वेस्ट me or Miss Sara at this. We have provided the email that has been flashed over here. We could write in chat section as well, and we'll try inshallah to review.
should master student only write study objective, or should they mention research objective as well of your final year project in the proposed file? Sarah, if you could kindly comment quickly in a minute, because we are only left with 4 minutes. So I'll like हम एक मिनट एक क्वेश्चन को अगर जल्दी से दे दे. ठीक है तरीम, इसमें आई वुड जस्ट से कि अगर तो वो रेलेवेंट है प्रपोज फील्ड के लिए तो आप उसे मेंशन करें, अगर नहीं है तो फिर डजंट मैटर. आई मीन जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर रहे होने चाहिए. अगर कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव देम देयर. जस्ट मेक श्योर कि वो बहुत टेक्निकल या बहुत डिटेल में ना जा रहे हैं. Next question is it beneficial to mention our internship is relevant to our study objective? Again, I don't recommend doing that unless relevant कोई चीज हो, तभी आप उसको अपने application या आपके पास स्पेस है और आपके पास इंटर्नशिप इतनी नहीं है और आपके पास 1 या 2 है, तो आप उसको फिर मेंशन कर सकते हैं. अगर आपके पास स्पेस है तो गो फॉर द मोस्ट रेलिवेंट फर्स्ट. हाँ, इसको आप एप्लीकेशन में जरूर मेंशन करें जहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता रही हैं, वहाँ पे अपनी सारी इंटर्नशिप्स मेंशन करें. बट आगे जो रिज्यूमे है या आपके जो बाकी रिज्यूमे या बाकी जगहों के ऊपर जो बहुत रेलिवेंट है सिर्फ इनको. बट इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ अ कंटेंट देन यू कुड गो विद दैट. माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर करंटली लिविंग ऑस्ट्रेलिया, तो ये yes definitely it will count क्योंकि आपका एकेडमिक है. और जब वो आपके पढ़ा रहे थे तो he was or she was basically he was affiliated with that particular university. जिस तरह से मिस सारा सर के एडजंक्ट फैकल्टी ने दिया, तो yes it really counts from him as well. तहरीम का ये should we mention about future plans SOP? Obviously आपने अपने फ्यूचर प्लान्स अपने स्टडी एसओपी और रिसर्च ऑब्जेक्टिव दोनों में आपने मेंशन करने हैं. एसओपी में आपने ब्रॉडर अपने प्लान्स मेंशन करने हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आपने उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई होके आपने उनको डिस्कस करना है. आई एम सॉरी आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जिन्होंने एक आध नहीं, इट इज़ बेटर टू यस सुदैफा हम कर सकते हैं रिज्यूमे में. बट देन अगेन हमारे पास कितनी रूम है, कितना स्पेस है अवेलेबल रिज्यूमे में. और डॉक्टर फातिमा का है अगेन ये हमारे साथ कुछ लोग थे उनका डीवीएम से था, तो वो दे वर आल्सो डॉक्टर, तो उनका जो है वो कंसोलिडेटेड नहीं था, सारे ईयर्स का अलग अलग से था, तो उन्होंने वो सबमिट करवाया था. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन. टोटल 150 स्कॉलरशिप. टोटल ऐसा नहीं होता, कभी 160 भी होते हैं. हमारे कोहोर्ट में सैडली 130 हैं हम इस साल जो जा रहे हैं. सो 170 भी कभी जाते हैं और हमारे कोहोर्ट में 130 है. सो दैट रियली डिपेंड्स अपॉन द लक के हाउ इज द लक और द फंडिंग, हाउ इज द फंडिंग सिचुएशन. हमारे यहाँ 130 जा रहे हैं. सो इट्स नॉट द or can I ask my professors to USA to write a recommendation not relevant to the field but basic courses are you could ask your professors in USA, but then again आपका interaction कैसा रहा है उनसे, interaction रहा भी है या नहीं रहा. अगर बिल्कुल interaction नहीं किसी person से तो फिर kindly don't ask them. और should be from medical university yes, but अगर आप अभी professional field में हैं तो आप kindly एक अपना जो है ना professional या आपने जहाँ से house job की है वहाँ से आप कर सकते हैं. Ali, it's 90 to 45 ratio. So with this, I'll request, I'll thank Ms. Sarah for sparing time once again, and thank you all for joining us. And I'll request Ms. Sarah to please conclude this session. Absolutely, thank you Naveed so much for having us. Guys, I know बहुत सारे लोगों के और भी questions होंगे. If you have any questions, feel free to drop us an email. Email IDs screen पे सब मौजूद हैं. अगर email नहीं भी तो you can always ask in the Fulbright Aspirants Facebook group या जो WhatsApp वाला group है. And both Naveed, me, as well as there are so many other mentors who are always available to help. So कोई भी अगर additional questions हो, just drop us an email. email करते हैं हमें यही questions, तो we'll be happy to respond. We'll be happy to answer them. And again, good luck everybody. I know the deadline is super close now, so I hope all of you succeed. That's pretty much it. मेरी तरफ से तो. So thank you Sarah. Thank you. Good luck everyone. Right. Thank you Sarah once again. Good luck. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.